Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who is live with me because it's still 2 minutes till 7. So I'll just go on different platforms and see who's live with me over there. और जब तक आप लोग आते हैं, so then I'll start with the session. And in the meantime, those of you who are watching me already, you can let me know what you think about today's session. What do you think I intend to talk about? Okay, so I can see myself live on other platforms as well, and I can do certain things which is muting myself. And let's see. Okay, so where is it? Okay, here I can see myself, so I'm over here. अच्छा जी, चलें जी, अब आप बताएं. I have changed the timings for the session for the simple reason the weather is changing and there are other commitments as well, so I can't go live at 8 p.m. because I have to adjust other timetables as well. So okay, I can see someone at the top of my screen. Assalamu alaikum, whoever this is. So if you're still here till I end this session, then I'll take you live on camera. But in the meantime, चूँकि जो है I'm just about to start with the session, I can't take you live on camera. Okay, Naveed Ahmed, thank you so much for joining and watching. Now, what do you think about today's topic? आज का जो topic है, it is about something twist. Like, what do I plan to talk about? It's regarding problem solving with a twist. Yes. So आपके जो भी ख्यालात हैं इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, do let me know and I will share my views and my tips, like how can you solve problems. So actually this is basically a quote which I read about from, like, it's a quote of Albert Einstein, and he said we cannot solve our problems with the same thinking we used to create it. So this is what I plan to talk about, कि किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. डेफिनेटली आई विल बी एनालाइजिंग द कोट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, but according to my own observation and my own tips, how we can do it. So इसमें सबसे पहले तो आपने ये चीज़, and I can see so many people who are live at the top of my screen. Muzammal Shehzad, thank you so much for joining and watching. Khan ji, no, add me. Add me where? Where should I add you? You are at the top of my screen, so I will only add you once I am through with this session. So only then I can take you live on camera. But you want to come live right now? You want to participate something into the session? Okay, if you want to participate, I can bring you live, and whatever you want, whatever thinking you have or whatever thoughts you have and you want to share, you can share your thoughts. WhatsApp. Okay, I already gave you my WhatsApp business number and I shared it here online. So I hope आपने उस टाइम पे नंबर जो है ऐड कर लिया होगा. Otherwise, at the end of the session, I'll share it again in the comment box, and then you can see it from there, and then you can contact me in my WhatsApp business number. And I can see someone else who is coming and going. Okay, anyways, let me get back to my topic. अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना, आपको मैंने बताया है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन कोट है, एंड आई टेंड टू डिस्कस दैट कोट. अब उस कोट में सबसे पहले तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि कोई भी काम या कोई भी प्रॉब्लम जो आपके सामने होता है, इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली you need a solution to get over that problem, and you cannot have the same thinking when you are looking for a solution. Okay, Khanji, I have got your number and I'll note it. Naseer Ahmed, Walaikum Assalam. Thank you so much for your compliment and your prayers and duas. Thank you so much. So welcome to my session. So सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि भाई हर प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट. जब आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा तो ओनली देन यू आर गोइंग टू बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. अगर आपका माइंडसेट सेम होगा तो यू आर नेवर गोइंग टू फाइंड
द सोल्यूशन. ऑब्वियसली येस यू विल फाइंड द सोल्यूशन, बट वो सोल्यूशन नहीं होगा, इट वुड बी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. सो वो हम अक्सर बात करते हैं ना कि ओल्ड थिंकिंग और रिजल्ट्स. सो ओल्ड थिंकिंग यही है कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव द सेम ओल्ड थिंकिंग, सेम माइंडसेट, सेम वही व्यूज़ और वही रिसर्च, वही मेथडोलॉजी, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम ही होंगे. बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, नो आई मीन you're looking for a solution to a problem, then you have to change your perspective. और उसमें आपकी थिंकिंग भी चेंज होनी है. लाइक अगर मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आप जो है हर रोज़ काम पे जाते हैं एंड हर रोज़ आप लेट होते हैं. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग आप लोग जो ऑफिस जाते हैं आप लोग लेट होते होंगे, बट देन देयर आर मेनी पीपल जो कि हर रोज़ लेट होती हैं एंड देन दे कांट ट्रेस द कॉजेज़ कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से हम हर रोज़ लेट होते हैं. नाउ द प्रॉब्लम टू इट इज़ कि अगर आप एक ही रूट लेते हैं, एक ही सिग्नल क्रॉस करते हैं, एक ही हो सकता है आप बस लेते हो या एक ही किस्म की ट्रांसपोर्ट लेते हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं या चाहे आप खुद जो है ड्राइव करते हैं. सो इफ़ यू आर टेकिंग द सेम रूट अगेन एंड अगेन, सो उससे जो है आप की बेहतरी नहीं आ रही, आप मज़ीद लेट हो रहे हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू चॉक आउट अ रूट जो कि जिस टाइम पे आप निकलते हैं. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स. हो सकता है कि आपकी टाइमिंग करेक्ट ना हो, आप जिस टाइम पे निकलते हैं उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती हो, या हो सकता है कि आप जिस रूट से जाते हैं उधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती हो, या उधर और बहुत सी जो है चीज़ें होती हो जिसकी वजह से आप लेट हो जाते हैं. क्योंकि आमतौर पे लाइक इफ़ यू नो इट ऑल डिपेंड्स आप किस रूट से ट्रैवल करें. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार तो ऑब्वियसली कार टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, और जहाँ पर ज़्यादा रश होगा वहाँ पर स्पीड टूट जाएगी. एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ बाइक तो बाइक एट टाइम्स यस वो बहुत जल्दी निकल जाती है अगर फंसी हुई भी ट्रैफिक हो, बट इट ऑल डिपेंड्स. क्योंकि जिस तरीके से जो है एट टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल हो जाती है, या कहीं रूट लग जाता है, या कोई जो है स्पेशल जो है प्रोटोकॉल होती है, तो उसमें अक्सर लोग लेट हो जाते हैं. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. और ये थिंग्स आपके जहन में तभी आएंगी व्हेन यू आर अप टू डेट. आप अपने जो है इर्द गिर्द पे नज़र रख रहे हैं कि ओके ठीक है. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे सफ़र अ लॉट, ख़ास तौर पे जब एग्ज़ाम्स के डेज़ होते हैं और उसमें जो है किसी किस्म का जो है कोई इमरजेंसी लग जाती है, या कोई जो है प्रोटोकॉल आ जाता है, या किसी भी किस्म की जो है सूरत हाल हो जाती है, तो बच्चे जो है दे कांट मेक इट ऑन टाइम इन द एग्ज़ाम्स. एंड इफ़ दे आर टेकिंग द एग्ज़ाम्स जो कि इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं, CIE एग्जामिनेशंस हैं, तो देन द बोर्ड इट डज़ नॉट कंसिडर कि भैया आपका जो है मुल्क बंद है या इमरजेंसी है या जो भी है. दे गो थ्रू विद देयर प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटीज़ और वो अपने एग्ज़ाम्स जारी रखते हैं. सो आपने जो है ना ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि ओल्ड थिंकिंग नेवर वर्क्स. यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन. सो अगर आप लेट हो रहे हैं तो रादर कि आप जो है हर वक्त लेट होते रहें, यू हैव टू लुक फॉर अ सोल्यूशन. और वो सोल्यूशन आपकी टाइम मैनेजमेंट में हो सकता है, वो सोल्यूशन आपके प्रॉपर ट्रैफिक रूट का हो सकता है, वो सोल्यूशन यू हैव टू बी बाखबर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग्स. और आप जिस भी सिटी से हैं उधर के क्या सूरत हाल है उसके मुताबिक यू हैव टू प्लान योर रूट्स. ओके अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग. अच्छा, सेकेंड जो है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, इट्स दैट ग्रोथ किस तरह होती है. ग्रोथ जो है इट ऑलवेज रिक्वायर्स न्यू पर्सपेक्टिव्स. कोई भी अगर स्टैगनेंट है तो वो ग्रो नहीं कर सकता. सो ग्रोथ के लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. यू हैव टू डू थिंग्स जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो. और लाइक अगेन जो ग्रोथ है इट डिमांड्स न्यू वेज ऑफ थिंकिंग. उसमें आपकी जो टिपिकल थिंकिंग है या टिपिकल जो नॉलेज है दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू टू सोर ग्रेट हाइट्स, या इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो. सो ग्रो करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो है यू लर्न न्यू वेज. लाइक अगर मैं आजकल की दौर की बात करूँ तो दिस इज़ द डिजिटल वर्ल्ड. और इसमें जो है जो जितना ज़्यादा इक्विप्ड है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज, या डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं या टेक्स हैं, या जो डे टू डे जो है इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे हेल्थ इंडस्ट्री में हो,
या चाहे जो है आईटी की इंडस्ट्री में हो, चाहे बिजनेसेस में हो. सो एवरी बिजनेस, चाहे वो स्मॉल है, चाहे मीडियम है, चाहे लार्ज है, एवरी वन नीड्स टू इक्विप themselves according to the changing circumstances. और उसी सूरत हाल में ग्रोथ होगी. अगर आप कोई लाइक कोविड-19 में देयर वर मेनी बिजनेसेस जो कि स्टार्ट हुए और उनमें से बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बंद भी हो गए हैं फॉर द सिंपल रीज़न दे डिड नॉट चेंज देयर सेल्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस. क्योंकि जो डिजिटल दौर है वो कोविड के बाद जो है बहुत ज़्यादा इन हुआ है. सो दोज पीपल हु गॉट इक्विप्ड, अब इसमें जो है मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे सामने एग्जांपल्स हैं वो टीचर्स की एग्जांपल्स हैं. सो दोज टीचर्स हु इक्विप्ड देमसेल्फ विद रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट और जिन्होंने डिजिटली अपने आप को जो ग्रूम किया और सीखा, सो उन्होंने जो है अपने लिए एक फ्यूचर अपना चेंज कर लिया. एंड दैट्स द रीज़न मेनी यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स वर बॉर्न. एंड यूट्यूब पे भी आपको बहुत नए नए जो क्रिएटर्स मिलते हैं. एंड देन टिकटॉक पे भी बहुत क्रिएटर्स मिलते हैं. सो ये जो टाइम पीरियड था वो लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे में के लिए इस्तेमाल किया, दे आर लीडिंग सक्सेसफुल लाइव्स एंड ऑब्वियसली पीपल आर फॉलोइंग देम. क्योंकि हर एक को सक्सेस एक ही टाइम पे नहीं आती, किसी को जल्दी आती है, किसी को देर से आती है. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. इसमें लक का इतना फैक्टर काउंट नहीं होता जितना कि आपकी मेहनत का होता है. सो इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड, ऑब्वियसली एवरीवन इज़ गोइंग टू वॉच इट एंड दे आर गोइंग टू लाइक इट. और जाहिर है जो कंटेंट जो है किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है वही कंटेंट लोग वहाँ पर देखते हैं. बाकी तंज, मज़ा, मीम्स एंड अदर थिंग्स, ड्रामा, ये तो जो है हर कोई देखता रहता है. बट यू नो दीज आर द थिंग्स जो लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करें. क्योंकि नॉट एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड इन ड्रामा. किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसके किस तरीके से बेइज्जती हो रही है. नाउ दीज आर द थिंग्स जो वक्ती तौर पे मे बी दे माइट बी एंटरटेनिंग या मे बी दोज पीपल, क्योंकि हर एक का अपना एक डिफरेंट माइंड सेट होता है. सो दोज पीपल हु आर इनटू गॉसिप, they would be trying to get knowledge and get a peep into these kind of content. But then there are people like students ho gaye, like professionals ho gaye, who want to excel in their lives, in their businesses, in their work environment, in their industry. So they're always going to come back for the educational content या ऐसा content जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करा हो. So this is regarding जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो this is exactly the kind of growth I'm talking about. कि if you want to grow, you have to improve yourself, you have to devise new ways तो already होते हैं. You just have to adapt yourself according to the circumstances. और उसमें जो है stagnant रह के आप grow नहीं कर सकते. Okay, let me take your comment साथ के साथ. काजी नदीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम. Okay, you are saying you did not know I changed the no I actually told actually you weren't in my previous session. So मैंने उसमें भी बताया था I'm going to change the time, क्योंकि वो भी मैंने session पहले किया था. But that was around 7:30. But I told in that session कि I'm going to change the time from 8 to 7 because now winter is starting and there are other commitments as well. So I don't want कि कोई भी चीज़ है सफ़र करे. So that's why मैंने से घंटा पहले कर दिया. अशोक कुमार आप कह रहे हैं by the time changing is necessary. By the time changing is necessary. Yes, changing is necessary with due course of time. Obviously बहुत सी चीज़ें होती हैं which you have to change. As a person you have to change. इंसान के अंदर बहुत सी changes होती हैं which are required. So you have to change. So here I'm talking about if you want to grow in your respective profession, you have to change and you have to adapt to new technologies and new ways in order to improve yourself. So this is another thing. अच्छा, फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, we often talk about innovation. Now innovations जो है ना, जब हम innovation की बात करते हैं ना, तो innovations जो है, again for innovations you need to have a creative mindset. आप अगर कुछ नई चीज़ करना चाह रहे हैं या आपके जहन में कोई आइडिया है, you will always come up with new ways. Now innovation, for innovation you have to break set patterns. Now there are specific conventional patterns जो कि कहा जाता है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता. Like I would again give the example of typical teachers जो कि जब
बच्चे जो है उनको चैलेंज करते हैं कि नो मैम या नो सर ये चीज़ इस तरह नहीं हो सकती, सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम या एक्नॉलेजिंग देयर आइडियाज़, दे वुड से कि नो ये चीज़ इसी तरह होगी, ये इतने अर्से पहले जो है फलाने फ़िलासफ़र ने कही थी तो उसका दिमाग सही था ना, तो इसलिए उसने ये बात की थी, तो अगर जो है वो इतना बड़ा फ़िलासफ़र वो ये बात कर सकता है तो तुम्हें जो एक्नॉलेज करने में क्या इशू है. सो द थिंग इज़, this is I think this is not good on the part of the teacher for the simple thing कि चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ या चेंजिंग एनवायरनमेंट या चेंजिंग एरास के साथ एज अ टीचर यू टू नीड टू इम्प्रूव एंड ग्रूम. बच्चे जो है दिन ब दिन दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट, एंड एज अ टीचर अगर आपकी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है या किसी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से आप हैं तो यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ. और उस ग्रूम करने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि व्हेन द चाइल्ड कम्स विद देयर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बी इन दैट पोजीशन टू आंसर देयर क्वेश्चंस रादर देन कि उनको आप कंडेम करें या आप उनको शटअप कॉल दे दें या आप उनको रिडिक्यूल करें कि भाई ये क्वेश्चन आपने पूछा तो पूछा क्यों, एंड देन आप जो है यू कम विथ सो मेनी अदर थिंग्स कि भाई आपने डिसरिस्पेक्ट की है टीचर की या आपने जो है टीचर को चैलेंज किया है. सो दीज आर बैड थिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर. So I always insist and I always appreciate when students or when everyone, खैर मेरे तो जो students हैं वो आप लोग ही हैं, and I am mostly teaching adults. So इसलिए जो है I'm always encouraging, क्योंकि adults में भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनके सवालात बच्चों की तरह होते हैं, क्यों, क्या, कहाँ, क्यों ऐसे हुआ. So there are a lot of questions and questions are good क्योंकि when you're asking questions it shows your curiosity to learn. So अगर किसी में curiosity है learning की, like I myself, I question a lot. I am very curious about learning, and I try to learn new things every day. So I don't stick to just one subject कि okay भाई ये मेरा field है तो I'm just going to stick to this field. I want to learn about other fields as well. I want to know कि जो लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं हाउ आर दे वर्किंग, उनको क्या क्या तकलीफ फेस करनी पड़ती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, हाउ डू दे ओवरकम विद दोज चैलेंजेस. सो फॉर दैट आई डू दिस पॉडकास्ट, और जिसके लिए मैं रेगुलरली जो है आप लोगों को इनवाइट भी करती हूँ कि whoever wants to do a podcast with me and they want to share their peace of mind and their expertise with other people जो कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, तो यू आर मोर देन वेलकम टू इनबॉक्स मी. बट येस, अगर आप इनबॉक्स जो है मेरी तारीफ़ें करने के लिए करते हैं तो मेहरबानी करके फिर मुझे इनबॉक्स ना कीजिएगा. Qazi Nadeem Ashraf, you're saying you missed Monday session. It's okay. It's uploaded on Facebook, and in 2-3 days it would be uploaded on YouTube as well. Cause there are already videos in queue, so I have to edit those videos and then I have to upload them. But अगर आप लोगों को बहुत जल्दी है तो मैं उनको बगैर एडिट करके अपलोड कर दूँगी. नो वरीज, नो इश्यूज़. सो आप लोग जो है जो वीडियो जो है फेसबुक पे देख रहे होंगे, यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब as well simultaneously. Okay, so abhi simultaneously I can't upload on YouTube for the simple reason ki there are certain things which you have to do on YouTube. You have to put the tags, you have to put the description, then you have to do the SEO, and there are many other nitty-gritties which I have to do. But on Facebook I don't have to take care of these things. I can just go live and share whatever I am thinking. So over there भी when I talk about editing, it's not that editing कि भाई मैं कहूँ कि 42 मिनट्स की वीडियो है तो वो मैंने 15-20 मिनट्स की रिड्यूस कर दी है. अगर 42 मिनट्स की है तो एज इट इज़ ही 42 मिनट्स की ये जाएगी. Cause I don't censor my content and I don't edit it, and I don't like that scripted and edited version cause to me it looks too much artificial. So इसलिए जो जैसा होता है वो वैसे ही चला जाता है. You're welcome, Qazi Nadeem Ashraf. Okay, so coming back, innovation के लिए you have to break from the old patterns, क्योंकि कोई भी innovation stagnation में नहीं होती, कोई भी innovation जो है ऐसे ही नहीं हो सकती. Innovation के लिए you have to have a creative process, और आपके जो है जो creative mind है it's different than others. So क्योंकि आप अक्सर जो है देखते होंगे कि जो इनोवेशंस हैं दे ऑलवेज हैपन व्हेन यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स.
ऐसी इनोवेशन नहीं हो जाती है। अब आप अगर जो है इनोवेशन की आपको मैं सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो दूँ कि टेलीफोन की एग्जांपल ले लें। व्हेन मोबाइल फ़ोन्स वर क्रिएटेड या टेलीफोन्स इवन नॉट मोबाइल फ़ोन्स, जब टेलीफोन क्रिएट हुए थे तो उनका मकसद क्या था कि एक कॉल करे और दूसरा सुने। बट देन वो जिन्होंने जो है मोबाइल फ़ोन्स क्रिएट किए या डिफरेंट ऐप्स क्रिएट किए या ये सोशल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जो कि फ़ोन्स में फिर अब ऐप्स के फॉर्म में आते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, स्नैक वीडियो, नाउ दीज आर ऑल ऐप्स। सो वो जो क्रिएटर्स थे जिन्होंने ये क्रिएट किया उन्होंने यही सोचा ना कि भाई फ़ोन को जस्ट जो है हाई हेलो तक क्यों महदूद रखा जाए, उसको जो है एक नया मकसद क्यों ना दिया जाए। सो दिस इज़ इनोवेशन। और ये इनोवेशन जो है जब वो क्रिएटर्स कर सकते हैं, सो वी एज ह्यूमंस चाहे हम जिस भी एरिया में हैं अपने फील्ड के, वी कैन ऑल्सो क्रिएट दीज एप्स एंड इनोवेशन। एंड इनोवेशन इट जस्ट नीड यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स रादर दैट कोई आपको बता रहा हो। एंड इवन इफ यू नो यू आर नॉट क्रिएटिंग एप्स, यू माइट बी क्रिएटिंग अदर थिंग्स। आप अपनी जिस भी इंडस्ट्री में होंगे आप हर रोज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। सो वट एवर यू डूइंग, जो भी आपकी इनोवेशन है, इट इज़ इनोवेशन एंड फॉर दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर इसमें जो है ना एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वी कैन नॉट ऑलवेज बेस देम ऑन रिएक्शंस, क्योंकि फॉर इमोशंस ये जो है दिस इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट ना, कि भाई किसी को गुस्सा आया तो आपने जो है गुस्से में आपने क्या किया, आपने लड़ना शुरू कर दिया। दिस इज़ एब्रप्ट रिएक्शन ना। अब ये जो एब्रप्ट रिएक्शन है इट इज़ नॉट हेल्पफुल। अब इट्स नॉट हेल्पफुल क्योंकि यू नो द मोमेंट समवन यू नो आर्ग्यूज विद यू एंड यू ओपन योर माउथ और हर एक को पता चल जाए कि भाई अब लड़ाई होने वाली है, सो इट डज़ नॉट वर्क। सो एज एडल्ट्स, मेच्योर एडल्ट्स, बिकॉज ये चीज़ आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अब बच्चे भी इतने सियाने हो गए हैं, वो भी जो है जब मुंह खोलते हैं अगर आपस में उनके बहस हो तो वो लड़ते नहीं हैं। दे कम अप विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, दे आर वेरी लॉजिकल। वो आपको एविडेंस देते हैं और वो आपको ऐसे ऐसे एविडेंस देते हैं कि आप सोचते हैं कि भाई वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम रादर देन कि हम इनको जो है यू नो लर्न करवाएं। बिकॉज नाउ द रोल्स आर प्रिटी मच चेंजिंग, but you know I'm talking about those children who are very mature in their ages and mature in the sense minds unke mature hain, not that they are mature by age, but yes they have a lot of wisdom and they know what to talk and how to talk as compared to बहुत से ऐसे adults हैं, adult parent हैं who don't know how to talk or who do not know how to convince themselves, so they need to learn from children as well. सो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की जहाँ तक बात है, इसके लिए भी जो है इट रिक्वायर्स न्यू रिस्पॉन्सेज। यू कैन नॉट जस्ट रिएक्ट। सो वो जो रिएक्ट थ्योरी है, यू कैन नॉट अप्लाई दैट टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी नॉलेजेबल, you have to assess the situation, or according to situation you have to act. You don't have to react. As parent, the best technique which I have applied to my children over the years is that when they come with a problem, don't react, just stay calm. चाहे आपको उनकी बात पर कितना भी गुस्सा आ रहा हो, डोंट सिंपली रिएक्ट। जब आप काम रहेंगे, आपके नर्व्स जो है कूल डाउन रहेंगे, तो देन यू विल हैव अ टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ यू नो बॉन्डिंग विद योर चिल्ड्रन। और वो जो बॉन्डिंग होगी, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग देम to you again and again. And it's not just with your children, it's with other children as well. Even you know if you are a teacher, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, या चाहे आप स्कूल में हैं, या इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, सो इफ़ यू हैव दिस एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी कि भाई you are calm at all times, so you will see you are going to invite a lot of people who are going to be attracted by your personality, and they're going to come to you and they are going to share their problems with you, and that's a blessing in disguise. And then जो भी अपने problem लेकर आए, you should have that knowledge how to you know tackle them, because there are every kind of people. Some people might be coming with mental problems, some people might be coming with you know extreme depression, then there might be other people जिनको जो है motivation चाहिए होगी, then there are other people उनके और बहुत से सिनेरियो होते हैं। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन दो सर्कमस्टांसेस कि आपने किसको किस तरह डील करना है। बट फॉर
एवरी सिचुएशन यू नीड टू हैव अ काम नर्व. अगर आपके नर्व्स काम नहीं होंगे और आप एकदम जो है एब्रप्टली जो है रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपके पास लोग भी आना बंद हो जाएंगे. बिकॉज जो सिनेरियोज़ हैं आजकल के, ख़ासतौर पे जो सिनेरियोज़ हैं, एवरी अदर पर्सन इज़ filled with depression and anxiety and stress. So if they can find one person जो कि उनको कामली उनके साथ जो है डील करे और उनको जो है किसी किस्म का सोल्यूशन प्रोवाइड करें, सो दिस इज़ हाउ यू लर्न new responses, and this is an approach which you can use for many people when they come to you regarding any problem. Okay, so this was regarding emotional conflict. अच्छा, फिर इसमें जो है ना एक और जो चीज़ आ जाती है वो है when we talk about adaptabilities. अब जो adaptabilities है ना, they are always going to lead to solutions. और वो किस तरह हैं, like जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड में बहुत से बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए, बहुत से बिजनेसेस जो है ख़त्म हुए, बहुत से वेल नोन ब्रांड्स बंद हो गए फॉर द सिंपल रीज़न कि लीड्स नहीं थे, लोग नहीं थे. एंड देन उसका एक नतीजा ये भी था कि वो जो ब्रांड्स थे दे वर नॉट वेल इक्विप्ड विद द डिजिटल इन्वायरमेंट एंड द डिजिटल सेटिंग. सो जिन्होंने जो डिजिटल सेटिंग को अपनाया, प्रैक्टिस किया, अप्लाई किया, उनके बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए. बहुत से जो ग्राउंड बिजनेसेस थे वो ऑनलाइन चले गए. बहुत से जो आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, सो हुएवर दिस इज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. I can't see you down. Okay, and I just rotated myself. Okay, I'm back again. So बहुत से businesses जिन्होंने अपने आप को well equipped किया with the technology, they were able to survive and excel. And वो बहुत से ऐसे brands हैं, यानी new sales थे who came into the field and who जो अब market में राज कर रहे हैं. And then जो known और established brands थे वो बंद हो गए for the simple reason they were not well equipped, और उन्होंने अपने आप को जो है equip करने की कोशिश भी नहीं की. So practically they ate out of their profits until a time came they just shut down everything. So shut down करके either mostly जो है mostly went abroad, mostly ने ओने पोने जो है अपने जो है जो businesses हैं वो बेच दिए, but that's not the way. So according to the circumstances you need to change. So जब आप adapt करते हैं अब environment के साथ, circumstances के साथ, तो वो adaptability is automatically going to lead you to solutions. अच्छा, then let's see, then इसमें जो है अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, दैट इज़ अ की टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है कि भाई आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं दे ऑलवेज रिक्वायर इंट्रोस्पेक्शन. अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को देखते नहीं है, वो गौर नहीं करते, उनको जो है हल करने की कोशिश नहीं करते, तो वो उधर ही रहेंगे. रादर इट्स गोइंग टू लीड टू other circumstances, like a person might turn up blaming external forces, या लोगों को blame करना शुरू कर देगा. So ये जो blame game है ये चलती रहती है. आप like as a person, or if you are in business, or if you're just an individual, so you have to look into your own self, and you have to retrospect, you have to self-reflect. So every day जो self reflection है that helps you, rather than कि आप जो है उसको रिफ्लेक्ट भी ना करें और at the end of the day आप कहें नहीं ये फलाने की गलती थी, ये धमकाने की गलती थी ना. मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जब बिजनेसेस जो है फेल होना शुरू करते हैं, फाजिल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. जब बिजनेसेस फेल करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, like those who do not own their businesses, and जिनको होता है कि भाई जब बिजनेस हो रहा है तो हर एक चीज़ तो लोगों के हवाले की हुई है ना. बिजनेसेस डोंट वर्क लाइक दैट. सो इफ़ यू कीप ऑन ब्लेमिंग पीपल कि भाई ओके दिस इज़ द डिजिटल मार्केटर, इसका जो है काम था कैंपेन लगाना, इसका काम था प्रमोट करना, नो दिस डज नॉट हैपन लाइक दैट. बिकॉज बिजनेसेस में इट्स नॉट जस्ट द डिजिटल मार्केटर्स, इट्स नॉट जस्ट द मार्केटिंग टीम, इट्स अ होल लॉट, क्योंकि काफ़ी टीम्स होती हैं जो कि बैठी होती हैं. इट्स लाइक इट्स द मार्केटिंग टीम, फिर आपकी क्रिएटिव टीम होती है, फिर आपके जो है आईटी की टीम होती है,
देन देयर आर अदर, आपकी जो है कंटेंट राइटिंग की टीम होती है. सो दिस इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज बिजनेसेस. इवन स्मॉल बिजनेसेस में भी जो है ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी फ्रेगमेंट्स में होती हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बिग 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 टीम्स, छोटी छोटी होती हैं. एंड देन इफ़ इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस जो कि ऑनलाइन बिजनेस है, तो मोस्टली एक ही बंदा होता है या एक दो बंदे होते हैं जो कि ये काम खुद कर रहे होते हैं. सो दे आर offering the services and they're working themselves as well. But due to technology इतनी improvement हो गई है कि even now a single person or just 1 or 2 person they can do the whole business if you have the right mindset and if you are well equipped with the technology. तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. So for that you need to do self reflection. Mohammad Sulaiman, thank you so much for joining and watching. Okay, then क्योंकि यू नो ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मोस्टली दे गिव राइज टू बर्न आउट्स एंड यू नो यू डोंट वांट टू बर्न आउट. सो बर्न आउट से बेहतर है कि यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन वट एवर यू आर डूइंग, और डे टू डे उसे प्लान करें या मंथली प्लान करें एंड कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग. सो जब आप अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो आपकी बिजनेसेस भी जो है तरक्की कर रहे होते हैं और आप खुद भी एज ए इंडिविजुअल तरक्की कर रहे होते हैं, एंड सो इज़ योर टीम. Okay, then one last point, it's that it's about technology and problem solving. So technology हमारी अक्सर जो problems हैं वो technology काफ़ी हद तक leverage कर चुकी है, cause the introduction of new softwares and we have so many softwares, good softwares. अगर मैं जो हूँ बात करूँ ChatGPT की बात करूँ, AI PRM, yes, ChatGPT it's another tool. Then Bard है, Claudia है, Copilot है. Then there are other designer apps as well. Microsoft designer है, Canva है, and there are so many other video editing tools भी हैं. Canva भी है उसमें, CapCut भी है, ProCut भी है, Filmora भी है, Filmport भी है, and Adobe Premiere भी है. बट ये सारे जो टूल्स हैं, अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉलेज अबाउट देम एंड यू नो हाउ टू यूज़ देम, ओनली देन आप इनसे फ़ायदा उठा सकती हैं. कॉज नाउ द टाइम इट्स ऑफ डिजिटल सिनेरियो, इट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हर दूसरा बंदा जो है या बंदी जो है, दे आर क्रिएटर्स, दे आर यूट्यूबर्स, दे आर टिकटॉकर्स. सो हर एक कुछ ना कुछ कर रहा है एंड हर एक को किसी ना किसी जो है एडिटर की भी ज़रूरत है, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी ज़रूरत है, बिजनेसेस को लोगो डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, एंड दे हैव अदर स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स एज वेल. सो ये चीज़ें जो है जब तक आपको नहीं आएंगी, और ये सब चीज़ें किस तरीके से आएंगी, आपको टेक्नोलॉजी से आएंगी. एंड यू नो नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ईच एंड एवरीथिंग सो ईजी, सो ईजी कि भाई आपने जस्ट अपना जो है सॉफ्टवेयर तलाश करना है, चाहे वो फ्री है चाहे पेड है. इवन अगर पेड भी है तो द पेड वर्जन इज़ नॉट सो मच, बिकॉज नाउ यू कैन फाइंड मेनी कंपनीज जो कि वो पेड वर्जन भी आपको ऑफर कर रही हैं फॉर जस्ट बल्कि कप ऑफ टी से भी बहुत सस्ता. सो इट्स वेरी सस्ता दोज पेड टूल्स. इफ़ यू गेट इन टच विद टेक्नोलॉजी तो आपके अक्सर प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. एंड देन if you have this mindset of creative thinking, you can get those tools developed as well. So you just have to look for the right people who can develop a software for you and you can develop it. And आप जो है ये सारे जो खर्चों से बच सकते हैं when you have a software in your own name and which you have created or you have developed, या आपने किसी से develop करवाया है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. So this is all regarding problem solving and how you can approach to solutions when you have a problem at hand. Okay, and this is and at the end I want to say that you have to embrace new ways of thinking, क्योंकि when you are open to change you are prone to grow, you are prone to bring new changes in your environment and yourself. And you are not fixated about this thing कि भाई problem is very big, क्योंकि it does not matter how big or small the problem is, as long as you are prone to change, as long as you want to change things. So the change, it has to start from you. बजाय आप दूसरे लोगों में जो है तलाश करें कि भाई चेंजेस जो है इनमें ये चेंज हो जाए, इनमें वो चेंज हो जाए. You have to bring the agent, you have to be the agent of change. So जब
आप जो है चेंज होना शुरू होंगे ऑटोमेटिकली। जो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर, आपसे इंस्पायर होकर, they are going to start changing as well. Okay, so this is all what I wanted to share today regarding, twist of problem solving. Now, if you were satisfied with the content of today's session, do let me know through your emojis कि आपको जो है कैसा लगा आज का सेशन, और आपको जो है कंटेंट कैसा लगा. सैयद अब्दुल राफे साहिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन. ओके जी, आप काफ़ी दिन बाद नमूदार हुए हैं. Okay, so now I can see one person at the top of my screen, and I'll try to take you live on camera. And if there's anyone else who wants to come live on my camera, on my live stream, तो आप भी आ सकते हैं. But for you to invite, I have to see the green camera button. Otherwise मैं आप लोगों को invite नहीं कर सकती live. और अगर किसी का कोई question है तो आप अपने questions मुझे बता दें, and I'll take your questions over here. Now let me just invite someone. Thank you so much for all these emojis. I can see them coming and still adding. It's, I think there's some kind of net. Okay, I cannot add. Okay, sorry about that. Okay, so this is all regarding today's session. अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी की क्वेरी हो तो you can always write it down over here. Otherwise आप मुझे inbox में जो है क्वेरी अपनी inbox कर दें तो I'll address it in my inbox. And anyone, if anyone is interested in doing a podcast with me, you have to let me know in the inbox as well. What do you want to share, and what part of your life do you think is going to add value into people's life? So you can just let me know if you want to do a podcast with me, and then you can plan it. और तब तक के लिए I'll see you live again on Friday, or Friday 7 p.m. same time, and till then take a lot of care of yourself, और दुआओं में जो है मुझे भी याद रखिएगा. और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसकी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, उनको शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों को उन वीडियोज़ की ज़रूरत है उनको आपने फॉरवर्ड भी कर दिया. So with that said, bye bye and take care. Allah Hafiz.